ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران میں ایران کی اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملے، پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف سے بھی ملاقات کی، وزیر خارجہ عباس اراغچی سے آج پھر ملاقات کی۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے، امن و استحکام اور سیکیورٹی سے متعلق سفارتی کوششوں پر گفتگو کی گئی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی گزشتہ روز کہا تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے رابطے میں ہیں، امید ہے معاہدہ طے پا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایران کو جنگ بندی کے لیے امریکہ کی بھیجی گئی تجاویز پر جواب دینا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف کا کہنا ہے کہ قوم اور ملک کے حقوق پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جنگ بندی کے دوران ایرانی فوج نے خود کو مضبوط کر لیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی ڈیل کے قریب پہنچنے کی باتیں قبل از وقت ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان گہرے اختلافات ہیں، سفارتکاری اور مذاکرات وقت طلب عمل ہیں۔ پاکستان ثالث ہے، اعلیٰ پاکستانی حکام تہران میں موجود ہیں، کوششیں جاری ہیں۔ اس مرحلے پر جوہری مسئلے کی تفصیلات زیر بحث نہیں ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کی قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے میں امن کی کوششوں پر بات چیت۔ قطری وزیر خارجہ نے بحران کے خاتمے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی کوششوں کی حمایت کی اور کہا کہ پائیدار امن کے لیے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ آبنائے ہرمز کو پریشر کارڈ کے طور پر استعمال کرنا بحران مزید بڑھانے کا باعث بنے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان اور عراقی وزیر خارجہ فواد حسین سے بھی ٹیلی فون پر رابطے کیے۔ عمان کے وزیر خارجہ کے ساتھ بات چیت میں حالیہ معاملات، جنگ کے خاتمے اور کشیدگی سے بچنے کے لیے سفارتی کوششوں پر بات چیت ہوئی۔ عباس اراغچی نے جاپان کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں خطے اور عالمی سطح پر ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین کے دورے کے پہلے مرحلے میں ہنگزو پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پہنچنے پر نائب گورنر زی جیانگ شو نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی ہنگزو میں صوبہ زی جیانگ کے پارٹی سیکرٹری سے ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم سی پیک فیز 2 کے تحت پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے درمیان تعاون کے فروغ کے لیے بزنس فورم میں شرکت کریں گے۔ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب میں بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ زی جیانگ صوبے کے ساتھ ڈیجیٹل معیشت، ای کامرس، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن سمیت کئی شعبوں میں عملی تعاون کو مضبوط بنانے کے منتظر ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو۔ نیو یارک میں جاری جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے جائزہ اجلاس سے متعلق امور اور علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عباس اراغچی نے کہا کہ امریکہ کی بد اعتمادی پر مبنی پالیسی، خصوصاً سفارتی وعدوں کی بار بار خلاف ورزی، ایران کے خلاف فوجی جارحیت، متضاد موقف اور حد سے زیادہ مطالبات مذاکراتی عمل میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران کے حقوق تسلیم کرنے میں ناکامی ٹرمپ کے لیے مزید ناکامیوں کا باعث بنے گی۔ ٹرمپ کے پاس ایرانی قوم کے مطالبات اور حقوق تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ قطری شاہی دیوان کے مطابق امیر قطر اور صدر ٹرمپ نے امریکہ اور ایران کے تنازع میں پاکستان کی ثالثی کوششوں سمیت علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ مسائل کے حل اور اسٹریٹجک آبی گزرگاہوں کی حفاظت برقرار رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ میرا خیال ہے کہ ہم کسی مثبت نتیجے کے قریب آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں۔ جس لیول پہ ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں مسنت بھی وہاں پہ ہیں اور فیلڈ مارشل بھی منیسا بھی وہاں پہ پہنچ کے ہوئے ہیں،
तो ये बजाते खुद एक इंडिकेशन है कि मामला जो है किसी हाल के करीब पहुंचे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फील्ड मार्शल और मोहसिन नकवी की ईरान में मौजूदगी बज़ाते खुद इशारा है कि मामला किसी हल के करीब पहुंचा है। हम दुनिया को एक बहुत बड़े बहरान से बचा रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब होंगी। सियालकोट में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान कहा कि महंगाई से कोई इनकार नहीं। जिस तबके के वसाइल महदूद हैं वो ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान रिकवरी के अमल में था, लेकिन इस जंग की वजह मईशत पर बुरे असरात पड़े हैं। रिकवरी का अमल न सिर्फ रुका है बल्कि रिवर्स हो गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया का कहना है कि 24 घंटों में 25 जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर की है। ईरानी इजाज़त मिलने के बाद जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ को अबूर किया। ईरान अमरीका जंग के बाइस मौशी मुश्किलात 27 ममालिक ने मदद के लिए आलमी बैंक से रुजू कर लिया। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये 27 ममालिक उन 101 ममालिक का हिस्सा हैं जिन्हें आलमी बैंक के हंगामी मालियाती निज़ाम की किसी न किसी शक्ल तक रसाई हासिल है। दस्तावेज में इन ममालिक का नाम नहीं दिया गया, ना ही दरख्वास्त की गई फंडिंग की सही रकम सामने आ सकी है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने गुज़श्ता माह कहा था कि मौशी बहरान से निमटने के लिए इदारा मुख्तलिफ ममालिक को $25 अरब की फाइनेंसिंग तक रसाई फराहम करेगा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का मरी की मॉल रोड का दौरा। मॉल रोड एक्विजिशन मंसूबे पर जारी काम और शीका गली चौक रीमॉडलिंग मंसूबे का मुआयना किया। बन्नू में थाना मेरियान की हुदूद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 12 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, 10 किलो वजनी देसी सांखा बम नाकारा बना दिया गया। ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार और एक रिटायर्ड FC एहलकार शहीद, 3 जख्मी। पुलिस और CTT की मुश्तरका टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फितरतुल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि कौम अपने बहादुर सपूतों की खिदमत को हमेशा याद रखेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTT ने बर वक्त कार्रवाई करके खारिजियों के नापाक असाइम को नाकाम बनाया। कराची आए हुए हमें ढूंढ रहे हैं, हमें जानी माली तो हर चीज़ का हमें नुकसान है। अभी भी उसके बंदे जो है 3 बंदे हमें ढूंढ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिस से रिक्वेस्ट करता हूँ हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पसंद की शादी करने का मज़हब और कानून दोनों इजाज़त देते हैं। मैं सिंध की बेटी हाथ जोड़कर अपील कर रही हूँ, अहमद अली खान चन्ना और सरदार सदाम बुर्डो इन्हें गिरफ्तार किया जाए। जैकबाबाद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े का आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा। वीडियो बयान में कहा खदशा है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। उनका सरदार और उसके बंदे कराची में ढूंढ रहे हैं। सरदार सदाम बर्रो और सरदार अहमद चन्ना ने उनकी पसंद की शादी को तनाज़ा बनाया। 400-500 लोगों के हमरा घर चलाए। उनके नाम दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल क्यों नहीं किए गए? इन सरदारों से हमारे खानदान को जानी और माली खतरात हैं। ये देखो करीमाबाद के पुल पे डकैत, ये 2 डकैत इस आदमी को लूट के गए। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू ना पाया जा सका। इस साल इब्तदाई 3 माह में डकैती के दौरान मुज़ाफ़रत पर 26 शहरी जान से गए। 14,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई। जराइम पेशा गिरोह मोटरसाइकिल की जगह किराए पर महंगी गाड़ियां लेते हैं, उसकी नंबर प्लेट तब्दील करके वारदात करते हैं। पुलिस का शिकवा है कि शहर में कैमरों की कमी के बायस कई केसेस की तहकीकात में मुश्किलात का सामना है। सिंध और बलूचिस्तान
समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह और मिट्टी में 44, तुर्बत और हैदराबाद 43, सखर, नौकुंडी और साहिवाल में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 41, मुल्तान और फैसलाबाद में 40, ठट्टा 38, जबकि कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के औकात में गिलगित बल्तिस्तान, बाराई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्क का पहाड़ी इलाकों में बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गली मोहल्लों में आलाइशें फेंकने वालों को 50,000 रुपए जुर्माने की मंजूरी दे दी। वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आला की हर शहर में ड्रेन, केनाल और दीगर मकामात की खुसूसी सफाई और निगरानी की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि ईद उल अज़हा पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। आला सफाई पर इनाम और 27 शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि ईद उल अज़हा सुथरा पंजाब ऑपरेशन के दौरान सूबे भर में 40,000 से ज़ायद इजाफी गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है सिंध से मुनशियात का खात्मा करेंगे। मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। खातून अनमोल ने माशरे में जहर फैलाने की कोशिश की। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि मेरिट के मुताबिक खवातीन में स्कूटी तकसीम कर रहे हैं। वकला खवातीन को भी पिंक स्कूटी मुफ्त दी जाएगी। हमने खवातीन के लिए अलग बसें शुरू की। सिंध भर में सफरी सहूलियात दी जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने 3,500 से ज़ायद गैर फ़ाल स्कूल दोबारा फ़ाल करके हज़ारों बच्चों को तालीम के धारे में वापस लाई है। 2 बरस में सरकारी स्कूलों में 7,17,000 से ज़ायद बच्चों का दाखिला यकीनी बनाया गया। तालीम में गफलत और करप्शन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। इस्लामाबाद में जीना एवेन्यू पर परेड ग्राउंड के करीब तेज रफ्तार कार को हादसा। खातून ड्राइवर जाँ बहक। शनाख्त रेयान वजीर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। जाँ बहक खातून रेयान वजीर साबिक सफीर अयाज वजीर की बेटी हैं। कराची के इलाके डिफेंस में रिक्शे और मोटरसाइकिल की टक्कर। मोटरसाइकिल के पीछे बैठा लड़का सड़क पर गिरा और बस के नीचे आकर जाँ बहक हो गया। हादसे की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। रिक्शा ड्राइवर फरार। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार रिक्शे वाले का पीछा करने के लिए गया, वापस नहीं आया। जाँ बहक लड़के की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रावलपिंडी में मेट्रो बस में आग लग गई। बस मुकम्मल तौर पर जल गई। आग लगने का वाकया 6 रोड मेट्रो बस स्टेशन पर पेश आया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। मेट्रो बस रूट पर बस सर्विस कुछ देर मुअत्तल रहने के बाद बहाल कर दी गई। नेशनल अस्पताल मुल्तान में HIV के मुश्तबा मरीज की रिपोर्ट आने से पहले सर्जरी करने पर 9 डॉक्टर्स और 1 नर्स मुअत्तल। मंगल के रोज एक मरीज की HIV टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही उसका ऑपरेशन किया गया। रिपोर्ट आने पर मरीज का HIV पॉजिटिव निकला। बुध की शाम तक इसी ऑपरेशन थिएटर में मरीजों के ऑपरेशन किए जाते रहे। ऑपरेशन थिएटर में मौजूद डॉक्टर्स और स्टाफ का भी HIV टेस्ट कराया गया है। पंजाब बसमा बुखारी का कहना है कि ईद पर कुर्बानी की आलाइशी ठिकाने लगाने के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मंडियों में व्यापारियों के लिए खुसूसी इकदाम किए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बसमा बुखारी ने कहा वज़ीर आला पंजाब ने सफाई के हवाले से खुसूसी अहकाम दिए हैं।